السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ندیم صاحب سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ جی بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کل فون کیا تھا ہم نے آپ کو تو آپ کی شاید امی نے اٹھایا تھا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ میں کیا ابھی باہر 4 دن میں لگا کے میں گیا ہوا تھا باہر۔ ارے نہیں چلیے کوئی بات نہیں، تھوڑی ملاقات میں تھا۔ ابھی اجتماع آ رہا ہے تو پچھلے 4 مہینے کی تشکیل کرنے کی نا سب کی۔ اچھا نہیں آپ کی امی تو بول رہی تھی کہ وہ مطلب وہ بارات میں گیا ہے شادی میں۔ نہیں بعد میں عیسیٰ بعد گیا وہاں، تو پہلے ملاقات میں گیا میں۔ اچھا چلیے خیر ملاقات ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی انشاءاللہ سب سے ملاقات۔ ابھی شادی تیار ہے، کچھ 5 سے شادی ہماری مسجد سے 4 مہینے کے لیے۔ تو 4 مہینہ جماعت میں جا کے مطلب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا کرتے ہیں، ایک تو دیکھو ایمان بن جاتا ہے۔ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بن جاتا ہے۔ ایمان ہے نا جو وہ بڑھ جاتا ہے، اپنے لیول سے نا بڑھ جاتا ہے، سمجھے؟ ایمان بڑھانے کی مطلب جو وہ فیکٹری ہے وہ مطلب یہی ہے محنت ہے۔ چلو ساتھ میں ایک بار تم میرے ساتھ میں 4 مہینے لگاؤ تو خبر پڑ جائے گی، تم تحقیق بھی کر لینا کیا ہے، کیسا کام ہے، کیسا نہیں میرے بھائی میں جماعت میں جا چکا ہوں الحمدللہ۔ پہلے میں بھائی مطلب کٹر وہ تھا جماعتی، میرا 3 دن 40 دن 4 مہینہ سب کچھ الحمدللہ بھائی وہ لگ چکا ہے وقت۔ ہاں اب تو نماز کے بھی پھاپے ہو رہے ہیں نا ابھی۔ نہیں نماز کے فاقے الحمدللہ اب تو بہت زیادہ نمازیں ہونے لگی ہیں۔ وہ تو خبر ہی ہے، میرے کو دیکھ رہا ہوں میں جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب کو دیکھ رہا ہوں کتنے میں بول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں میں جتنے بھی اہل حدیث ہیں سب کو دیکھ رہا ہوں کتنی نمازیں ہیں زندگی میں اور کتنی سنتیں ہیں زندگی میں اور کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے رسول سے۔ اچھا بھائی اور کچھ بولنا ہے؟ نہیں بس اتنا ہی بولنا ہے۔ وہی بس تمہاری وہی بول رہا تھا چلنا ہو تو بولنا پھر تم۔ ارے تو میرے بھائی میں جا چکا ہوں نا، میں نے مطلب بھائی وہ سیکھ لیا جو سیکھنا تھا۔ اچھا سیکھ لیے یہ سب، مطلب اس دن وہ جو وضو کے طریقے ایسا کیا وہ جماعت میں سیکھے ہی تھا کیا تمہارا؟ وہ جو وضو کا طریقہ بتا رہے تھے تم تو کیا وہ جماعت میں سیکھے ہوئے تھے؟ نہیں وضو کا طریقہ تو بھائی سب کا دکھتا مطلب وہ سیم ہی ہے، بس تھوڑا بہت مسئلے مسائل میں انتر ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ جو طریقہ کرتے ہو وہ بالکل غلط ہے یا ایسا نہیں ہے، تھوڑی بہت دقت ہے اس میں، کوئی دقت اپنا بھی نہیں تو بولو، باقی تمہارا بھی تو غلط ہو سکتا ہے نا یار، تم تو ایسا بول رہے ہو۔ ہاں تو بتائیے ہم لوگ کیا غلط دعوے کے کرتے ہیں؟ ساتھ ہم لوگ کیا غلط کرتے ہیں؟ ارے میرے کو تمہارا طریقہ ہی نہیں معلوم تو۔ ارے میرے بھائی وضو کا طریقہ ہے کیا میرے بھائی؟ جیسے آپ لوگ کا تو وہی سیم ہم لوگ کا ہے، بس ایک چیز کا فرق ہے، کیا بولے ابھی تم ایک چیز کا فرق ہے، آپ لوگ بھائی وہ جو مطلب بھائی وہ گردن کا مسا کرتے ہو تو وہ ثابت نہیں ہے سنت سے۔ ٹھیک ہے بس باقی پورا اوور آل بھائی وہ سیم ہے۔ ہلو ہاں بھائی بولو۔ ارے یار تمہارا وہ ندیم علی ہے یار، میں اس کو ہے نا میں اس کو یار فون کرا یار، میں نے اس کو بولا یار میرے کو تحقیق کرنی ہے، کچھ بتاؤ میرے کو کچھ، تو یار وہ مطلب بات نہیں کر رہا ہے یار، بدتمیزی کر رہا ہے یار۔ بولو بھائی وہ خالی عالموں سے بات کرتے ہیں۔ ہاں ادھر سنو، میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تو وہ یار بدتمیزی کر رہا ہے یار، یہ کوئی تہذیب سکھائی ہے یار اہل حدیث والوں نے۔ بھائی میرے کو معلوم نہیں، ان کی آڈیو آپ بھیج دیجیے گا، ہم سن لیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے بدتمیزی کی یا آپ نے بدتمیزی کی، بنا سنے کیسے فیصلہ کر لیں گے؟ خیر اچھا یہ بتائیے آپ سے وہ فیضان سے جو آپ کی بات ہوئی تھی۔ ہلو میں کیا بول رہا ہوں، ادھر سنو نا تم۔ ہاں ابو بھائی جی بتائیے۔ میرے کو بتا رہا تھا، مونو تو میرے کو بتا رہا تھا، بولے وہ ندیم الوی بولے ابو ان لوگ کا استاد ہے، بولے یہ سب چیلے چپاٹے الوی کے۔ بھائی پتہ نہیں بھائی، یہ بھائی افواہ ہے، جھوٹ ہے، ہم سب لوگ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوست ہے آن لائن۔ مونو وہ محسن ہے نا جو وہ بتا رہا تھا، بولے ان لوگ ابو اور یہ ان لوگ طلحہ ان لوگ چیلے چپاٹے سب الوی کے بولے۔ اب بھائی ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہو، ان کے کان میں بولا ہو، میں نے تو ندیم الوی بھائی کو آج تک اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی میں ان کو 1-2 سالوں سے جانتا ہوں، چیلے چپاٹے ان کی آڈیو سنتا ہوں۔ استاد کو کہاں دیکھنے ملتا ہے جلدی؟ نہیں تو ایسے چیلے چپاٹے تو آپ کے وہاں ہوتے ہیں، ہمارے تو استاد ہیں جن سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو استاد کہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے چیلے چپاٹے تھوڑی ہے بھائی بھائی اچھا مطلب آپ لوگ بھائی بھائی ہو اور ہم لوگ کیا بھائی وہ بہن بہن ہیں؟ عجیب بات کرتے ہو میرے۔ تمہاری مرضی، تم لڑکی بننا چاہتے ہو تو بنو،
मैं बोल रहा हूँ तुम बहन भाई बहन तुम हो, एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हो ना, बहन बहन हो। भाई तुम एग्जाम्पल ऐसा दे रहे हो ना कि हम लोग भाई भाई हैं तो क्या जो अरे दूसरे तो हैं वो मैंने क्या भाई बहन भाई बहन का है? एग्जाम्पल दिया, तुम भी भाई भाई का दो, तो बहन बहन का क्यों दे रहे हो तुम? चलो अभी पता चल जाएगा बहन कौन है। हाँ तो तुम ये बताओ, तुम वो फैजान से तुम कुछ बात कर रहे थे फोन पे, तो ऐन अल्लाह वाला जो हम लोग का टॉपिक था कल, वो आधा अधूरा रह गया है। तो मैंने हाँ, तो अपना देखो, अकीदा मैं तो बता पहले दिया था, तुमको तुमने पहले अपना ये बता अकीदा दे क्यों रहा नहीं हूँ। बताया? अकीदा तुम्हारा सिंपल नहीं, तुम पहले मेरे को ये बताओ कि अल्लाह मैंने आसमान में है या अर्श पे है? मैंने अपना अकीदा तुम्हें बता दिया था ऑडियो में, हाँ, उस तो वाली। ये साफ कर दो अब ना, तुम अपना 2 ऑडियो मिनट बता में दो साफ ना। कर दो। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, उसका जवाब दे दो। अल्लाह आसमान में है, अर्श पे है, या दोनों जगह है, ये बताओ। भाई मेरा अकीदा है वो मैं अपने मुंह से बता दे रहा हूँ, और एक बार हाँ, बताऊंगा, बता दो। हाँ एकदम कान खोल के सुन लेना, ठीक है? हाँ हाँ अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे टॉप पे, सबसे ऊंचाई पे, सबसे बुलंदी पे, और अल्लाह सुब्हान व तआला का जो इल्म है, उसकी कुदरत, उसका पावर है, वो हर जगह है, हर तरफ है और सबके साथ है। ठीक लेकिन है। अल्लाह सुब्हान व और तआला खुद अब सबसे देखो, मैं ऊपर बोल है। रहा हूँ सबसे ऊपर है, तुमने बोला ना जो सबसे ऊपर है, तो ऊपर तो आसमान भी है। पहला आसमान है, दूसरा आसमान है, तीसरा आसमान है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां है, फिर उसके ऊपर अर्श है। तो ऐसे इतनी सारी चीजें, तुम एक चीज बताओ ना, तुम बोलते एक ही जगह है, तो एक जगह बताओ कौन सी जगह है, या अरे फिर तो सिंपल बता बोल तो दो दिया, दोनों अल्लाह जगह है। सुब्हान व तआला सबसे ऊपर है और ये वो तो कोई हम भी, जगह नहीं है। तो सबसे मतलब तुम तो बोलते सबसे हो अर्श ऊपर पे कोई है, अर्श जगह कोई नहीं जगह है। नहीं है क्या? नहीं नहीं, अर्श कोई जगह जो जगह नहीं होती है। है वो इस दुनिया में, इस दुनिया से बाहर अल्लाह सुब्हान व तआला है। हाँ, तो बताओ ना कहाँ है, बताओ। अरे बता तो दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला भाई वो टॉप पे है। टॉप पे है, और मैंने नीचे की हदीस दे दी तो? नीचे की हदीस आप भाई पेश कीजिएगा ना, पहले आप अपना अकीदा तो बताइए। नहीं, पहले तुम ये बताओ कि अरे मेरे भाई, आसमान या अर्श? देवबंदियों का अल्लाह कहाँ है मेरे भाई? कोई देवबंदी बताता आसमान या क्यों नहीं अर्श, है? ये दोनों से मेरे को बताओ, अरे अल्लाह आसमान के या अर्श। बंदे, किसी भी देवबंदियों को आज तक यही नहीं मालूम चला कि उनका अल्लाह है कहाँ। आप बताओ आसमान ना या कहाँ है अर्श। आपका अल्लाह? हम अरे सब तुम बताओ बताएंगे पहले, भाई, हम पहले तुम सब बताओ ना। बताएंगे। अरे अकीदा तो आप साफ करो तुम्हारा, आसमान अकीदा या अपना अर्श। ना छुपाइए मेरे भाई, शिया वाला काम ना कीजिए, अपना अकीदा ना छुपाइए मेरे प्यारे भाई। आप जमात में जाते हो तो आपको इतना तो मालूम ही चल गया होगा कि अल्लाह सुब्हान व तआला कहाँ है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ये पहले साफ करो, आसमान या अर्श। ऊपर ऊपर बोल दोगे तो ऊपर तो बहुत सारी चीज है भाई। आसमान कहाँ है? ऊपर है कि जमीन में है? आसमान ऊपर है, अर्श भी ऊपर है, तो तो बात आसमान दोनों दो चीजें प्लस ऊपर हुआ आ ना। गई भाई, दोनों चीजें तो ऊपर दोनों आ पे है, गई। दोनों पे है, साफ बोल दो, दोनों पे है। तो मेरे भाई ऊंचाई क्या है? मैंने जब कह दिया सबसे ऊंचाई पे, सबसे टॉप पे है, तो उसमें आसमान भी आ गया, अर्श भी आ गया, सातों आसमान आ तो गए। सबसे ऊंचाई पे तो अर्श है, आसमान अर्श के नीचे है। अरे मेरे भाई, आसमान के ऊपरी तो अर्श है, अर्श के ऊपरी तो अल्लाह है, तो वही तो मैं साफ कह रहा हूँ बोल दो सबसे ना यार, ऊंचाई तुम पे है। आसमान के नीचे अर्श भी, ऐसा बोल दो साफ, अरे तो फिर जब मैं अल्लाह आसमान का के बंदे, नीचे अर्श का अल्लाह बताऊँ। के बंदे मेरे प्यारे भाई, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे ऊंचाई पे है, तो आप फिर उसमें सबसे कील काट ऊंचाई क्यों पे कर अर्श है। रहे हैं कि हाँ, आसमान कहाँ है, अर्श कहाँ है, जमीन कहाँ है, पत्थर कहाँ है, बालू कहाँ है? अरे इससे तो आपको यार क्या तुम लेना साफ देना? तो बोलो ना, ऊंचाई पे अभी मैं बोल दूंगा। भाई अपना अकीदा मेरे भाई आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मैं बताऊंगा, पहले तुम ये साफ करोगे, मैं पहले अरे बोल मैं रहा हूँ, तो साफ बताऊंगा, करोगे पहले ये फिर। करो, पहले वो करो, पहले ये करो, ये सब मेरे भाई ये सब बहानेबाजी है। या तो साथ में अरे बता दो, बात आपको फैक्ट्री है, आपको अपना अकीदा ही नहीं मालूम है, आपको आज तक मेरा मालूम ही अकीदा नहीं है कि मालूम है, आपका बनाने वाला तुम्हारी अल्लाह है आखिर ना, है कहाँ। तुम्हारी फैक्ट्री है बताने में, आसमान या अर्श या मेरे दोनों भाई जो मैंने जवाब दे बता दो दिया, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ऊपर है, सबसे ऊपर है, ऊपर है। ऊपर है, तो काम नहीं चलेगा। अरे सबसे ऊपर है तो बोल तो दिया सबसे ऊपर है मेरे भाई। अभी इधर सुनो, हेलो अरे मेरे हेलो, भाई, अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि भाई इलाहाबाद कहाँ है, तो मैंने तुमसे बोल दिया कि इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में। अब तुम कह रहे हो नहीं इलाहाबाद कहाँ है, यानी कि तुम उत्तर प्रदेश में नहीं हो, यानी कि इंडिया में नहीं हो, तो ये तो मंतकी सवाल हो गया ना मेरे भाई। अरे ऐसा कैसा सवाल हो गया? मैं बोल रहा हूँ भाई, दो अरे जब तुम मैंने रहे हो बोल ऊपर। दिया कि मैं इलाहाबाद मेरी में बात रहता सुनो हूँ, अभी, तो जाहिर सी मेरी बात है बात कि सुनो। इंडिया में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद अरे है। यार, उसी तरीके से मैंने बोल दिया कि अल्लाह हाँ, सुब्हानो ताला सबसे ऊपर है, यानी कि सातों सबसे ऊपर आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह है। तो मेरा अर्श अकीदा के तो ऊपर बिल्कुल अल्लाह, मतलब सिंपल है, आसमान में नहीं है ना, मेरा आसमान में अकीदा नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो सिंपल है ना, अर्श पे है, आसमान में नहीं है ना। अरे मेरे भाई, अर्श कहाँ पे है? आसमान पे तो है अर्श। हेलो, अरे अर्श कहाँ है? आसमान पे, अर्श जमीन पे सातों कहाँ अर्श आसमान है? के ऊपर है, सातों आसमान के ऊपर है अर्श। तो आसमान के ऊपरी तो है ना।
हाँ एकदम। और तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी खला है भाई। अरे वो मेरे भाई तुमने कितनी दूरी नापी? तुम क्या आसमान पे गए थे वो दूरी नापने के लिए इनकी टेप लेके? एक आसमान से दूसरे आसमान तक की दूरी क्या है बताओ जरा? वो कितनी भी हो लेकिन है कि नहीं? अरे मेरे भाई अजीब आदमी हो मेरे भाई, आधा अधूरा इल्म लेके बात करते हो। जमीन सात ये तुम्हारे मुफ्ती भाई, तुम्हारे जो ये मुफ्ती मुनीर हैं, उन्होंने भाई यही सब मंतिकबाजी तुमको सिखाई है 4 महीने की जमात में। पहले ये साफ करो, क्या हुआ? फट रही है क्या तुम्हारी? भाई 4 महीने की जमात में खाली तुम लोग को यही अकीदे में कीलकाल करना सिखाया जाता है। 4 महीने भाई शुक्र मानो मैं 4 महीने नहीं गया। अरे तो मेरे भाई 4 साल के लिए भी चले जाओगे ना, रहोगे जाहिल के जाहिल, ठीक है? हाँ तो आ जाओ फिर, सुनना तो भाई तुम अपना अकीदा बताओगे कि छुपाओगे यार? अभी मैं तुम्हारी ऑडियो डाल दूंगा तो लोग कहेंगे देखो भाई बेचारा एक देवबंदी अपना अकीदा नहीं बता पाया। यार नदीम भाई कैसे इंसान हो यार तुम? मैं बताऊंगा अकीदा, तुम खाली ये अरे देखो मेरे भाई तुमको बात करने का उसूल नहीं पता है। तुमने मेरा अकीदा पूछा, अब मैं तुमसे तुम्हारा अकीदा पूछ रहा हूँ, फिर मैं अपने अकीदे की भाई ओपन बात बताऊंगा, उसके बाद तुम अपने अकीदे की एकदम ओपन बात बताना, उसके बाद मैं अपने अकीदे की दलील दूंगा, तुम अपने अकीदे की दलील देना। तो तुम अपना अकीदा तो बताओ पहले। नहीं पहले तुम्हारा अकीदा मेरे को खोल के बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, फिर मैं अरे खोल के बता दिया मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ऊपर है, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर वो हर तरफ है, हर जगह है। अब इससे ज्यादा ओपन क्या बताओ? चल मैं बोल रहा हूँ आपको, देख सबसे ऊपर अर्श है ना। अरे मेरे भाई इससे बाद में आएंगे, ऊपर अर्श है नीचे धरती है, इससे बाद में आते हैं ना। तुम अपना अकीदा बताओ ना भाई, तुम साफ बोलो ना, अर्श पे है या आसमान में? अरे अल्लाह सुब्हानो तआला अपने अर्श के ऊपर कायम है, जलवा फरोश है। मैं बोल तो रहा हूँ इतनी देर से, सबसे ऊपर का मतलब क्या हुआ? कायम है। सबसे ऊपर से मतलब क्या हुआ? कायम कौन सी आयत में कायम का लफ्ज है बता? वो सब बताऊंगा मेरे भाई, वो जब भाई वो दलील देने की बात आएगी तब बताऊंगा ना। अभी तुम अपना अकीदा तो बताओ। नहीं पहले ये साफ कितना डर रहे हो मेरे भाई, कितना डर रहे हो? अपना अकीदा तक छुपा रहे हो वाकई भाई। तुमको कौन डर रहा है? मैं कब से यार राजी लग रहे हो उनको जो अपना अकीदा नहीं बता रहा है। अरे बता दो। इस दुनिया में किसी भी देवबंदी की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको यही नहीं मालूम है कि उसका पैदा करने वाला जो उसका रब है, उसका अल्लाह, वो आखिर है कहाँ? तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं। मैं भाई मेरी तो औकात है, मैंने तो बता दिया कि मेरा अल्लाह सुब्हानो तआला, मेरा रब, मेरा पालनहार, मेरे को रोजी देने वाला, वो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पे, सबसे बुलंदी पे। आसमान यार, ऊपर आसमान भी है और अर्श भी है। भाई ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। तुम अपना अकीदा बता दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अकीदा क्यों छुपा रहे हो अपना? पहले तुम ये बताओ, फिर मैं अकीदा बता दूंगा। अरे मेरे भाई तुम तो वही बात होगी, पहले आप मेरे भाई, पहले आप करते करते कहीं भाई को गाड़ी ना छूट जाए। तो सुनो मेरी एक बात सुनो। मेरा दोस्त बोल रहा था यार अनवर भाई, बोले अनवर भाई करके, एक बोले अप्पू भी रोज बजा। अरे यार अनवर कबाड़ी का नाम बीच में ना लो, पूरे भाई वो मूड की माँ बहन एक हो जाएगी मेरे भाई। उस कबाड़ी का नाम ना लो बीच में। ये सब अनवर कबाड़ी, हिजाज देवबंदी, आफ्ताब सिंधी चोर, इन सब की बहुत बार पिटाई हो चुकी है, इनको हटा दो बीच से। अब अगर तुम्हारा कोई मुफ्ती हो तो उनको बीच में लेके आओ, या तुमको बात करनी हो तो तुम बात कर लो। भाई तुम भी फैजान को फोन कर रहे थे ना कि हाँ बात करो, और कल तुम मेरे पास भी फोन कर रहे थे, ऐन अल्लाह पे बात कर लो। तो अब जब मैं तुमसे तुम्हारा अकीदा पूछ रहा हूँ क्यों नहीं बता रहे हो? अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हो मेरे अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे भाई? अरे मेरे प्यारे भाई अपना अकीदा बता दो, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? जब तक तुम ये बात साफ नहीं करोगे कि ये क्या होता है कि जब तक तुम मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे मैं तुम्हारे पाँव नहीं छूऊंगी, ये सब क्या बातें हैं मेरे भाई? ये सब मुगालसेबाजी कहीं और किया करो। तुम अपना अकीदा क्यों नहीं बता रहे हो? अपना अकीदा क्यों नहीं बता रहे हो? ये सब बड़े बड़े बोल बच्चे मत दो कि जब तुम ये नहीं करोगे, जब तुम वो नहीं करोगे। अरे मैंने अपना, तुमने मुझसे पूछा तुम अपना अकीदा बता दो, मैंने अकीदा बता दिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम अपना अकीदा बता दो। तुम अपना अकीदा ही छुपा रहे हो। अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हो? अकीदा कहाँ छुपा रहा हूँ? तुम बताओ खोल के अपना अकीदा। अरे खोल के क्या, उसकी पूरी मतलब भाई वो टांगे चीर दूं अकीदे की, क्या करूँ मेरे भाई? बता तो दिया कि अल्लाह सुब्हानो तआला अपने अर्श के ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे, एकदम टॉप पे है। हाँ तो अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है, अल्लाह सबसे ऊपर है। हाँ बेशक। अब मैं कितना बोलूं? अर्श पे है ना? अरे हाँ मेरे भाई,
हाँ तो आसमान में नहीं है ना, मतलब अर्श पे है तो। अबे तो अर्श भी तो आसमान है पगले झंडू लाल, अर्श क्या जमीन में है? तेरे पाँव के नीचे अर्श है नाउजुबिल्लाह। आसमान के अंदर है क्या? तू क्या अर्श के ऊपर चल रहा है क्या? अजीब मेंटल बात करता है आसमान के यार। ऊपर है। अबे यार अबे तो भाई आसमान अरबी में अर्श किसको आसमान कहते के हैं अंदर पता है? हाँ हाँ बता दो। समा किसको कहते हैं? कितनी क्लास पढ़ाई है बताना। समा किसको कहते हैं बताओ बेटा, तुम बहुत वो जमात में जाते हो ना 4 महीने की, बताओ समा किसको कहते हैं? इधर सुन, अरबी की तो समा किसको कहते हैं अरबी में? इधर सुन तुम्हारी। अरे समा अरबी में किसको कहते हैं? इधर सुन उधर सुन, ये सब भागो मत। अब मैंने तुम्हारी मुंडी पकड़ ली है, अब बताओ जल्दी। जो तुम आसमान आसमान भाई कुछ चिल्ला रहे हो, अरबी में जब आता है समा तो समा का माना होता है ऊंचाई बुलंदी। तो तुम ये कहाँ से कह रहे हो? अर्श कहाँ है? अर्श भी तो भाई समा पे है, आसमान पे है, बुलंदी पे है। तेरी इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? तू अपना कीदा नहीं बताएगा, मैं जानता हूँ। 15 मिनट हो गए बात करते करते, तूने अभी तक अपने अकीदे की एक लाइन भी नहीं बताई है। पहले बोल दिया मैंने, तो पहले बोल दिया अपना अकीदा खोल के बताओ। मैं तो बताओ ना मेरे भाई, बताऊंगा। अरे तुम भी अपना अकीदा मेरे भाई अपने आप, तुम एक काम करो, अपना अकीदा हमको एक लाइन में बता दो, तुम ना खोल के हमको बताओ, ठीक है? तुम बंद करके अकीदा बता दो। नहीं पहले तुम मेरे को पूरा अकीदा भाई बताओ। मेरा जो अकीदा था मैंने पूरा बता दिया है, अब मेरे भाई इससे ज्यादा मेरा कोई अकीदा नहीं है, ठीक? अब तुम अपना अकीदा बताओ। मतलब अर्श पे, अल्लाह अर्श पे है ना? वो मतलब क्या है? वो तुमको जो निकालना है निकाल लो, अब तुम अपना अकीदा बताओ। अल्लाह अर्श पे है, आसमान में नहीं है, इसका मतलब तो यही। हाँ ठीक है, जो तुम्हें मतलब लेना है ले लो, अब तुम अपना अकीदा बताओ। अपने मुँह से बोलो फिर तुम। हाँ मेरे भाई, जो तुम्हें समझना है, जो तुम्हें सोचना है, जो तुम्हें उससे मसला लेना है ले लो, अब तुम अपना अकीदा बताओ। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा भाई। अगर आज रात 12 बजे तक मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा, जब तक तुम अपना अकीदा अपने मुंह से नहीं बताओगे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज तुम अपना अकीदा बताओ। मेरे क्या छोड़ोगे? वो मेरे भाई जब ऑडियो जब जाएगी, पब्लिक सुनेगी ना कि कौन अपना अकीदा छुपा रहा है, वो पूरी भाई को पब्लिक जान जाएगी। चाहे वो देवबंदी हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, वो जान जाएगा कि कौन भाग रहा है अपने अकीदे से। पब्लिक यही बोलेगी नदीम बार बार। भाई मैं तो भाई मैंने अपना बता दिया कि मेरे को मेरा जो भी अकीदा था मैंने बता दिया है। अब तुम्हारा जो अकीदा है तुम अपना बता दो। तुम चाहे खोल के बताओ, चाहे बंद करके बताओ, चाहे ताले में लॉक करके बताओ, लेकिन बताओ तो कम से कम अपना अकीदा। अरे तो अपने मुंह से बोल दो एक बार आसमान में नहीं है, तो फिर मैं बोलूं? मैं क्यों बोलूं मेरे भाई? जब तुम एक चीज साबित कर दो, तुम ये साबित कर दो जो अल्लाह का अर्श है वो आसमान पे नहीं है, तो हम अपना भाई इस अल्फाज को कह देंगे। तुम साबित तो करो। आसमान के ऊपर है, आसमान। तो जब आसमान के ऊपर है तो बात खत्म होगी। अब तुम अपना अकीदा बताओ ना। तो अल्लाह आसमान बताओ यार, तुम अकीदा बताने में इतना टाइम लगा रहे हो तो तुम भाई अपने अकीदे की भाई वो दलील कैसे दोगे? मेरे अकीदे की दलील कैसे लोगे? जब तुम अपनी लाइन नहीं बता पा रहे, एक लाइन में बताओ कि तुम्हारा अकीदा क्या है? अल्लाह ताला हर जगह है, या तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला बिला मकाम है? चल बता। पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तुम्हारे लिए आसान कर देते हैं, तुम्हें 2 चॉइस दे रहे हैं, इनमें से कोई एक तुम्हारा अकीदा होगा, क्योंकि तुम देवबंदी हो ना। तुम्हारा या तो अकीदा होगा कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, या तो तुम्हारा अकीदा होगा कि अल्लाह ताला भाई वो बिला मकान है। तो अब बताओ तुम्हारा इनमें से कौन सा अकीदा है? अरे तुम्हारा अकीदा पहले बताओ मेरे को साफ करके। भाई डर गए? बोल दिया ना तुम बताओ। चलो भाई मैं फोन काट रहा हूँ, अभी ऑडियो में भेज रहा हूँ। अभी लोग देखेंगे कि नदीम देवबंदी अहमदाबाद में मुफ्ती मुनीर का चेला जो 4 महीने जमात में जाता है, अहले हदीसों का भाई वो रद्द करना सीखता है, लेकिन उसको आज तक ये नहीं बताया गया, ये नहीं सिखाया गया कि उसका अल्लाह ताला आखिर है कहाँ। उम्मत खुद पता वो उम्मत पता लगा लेगी मेरे भाई। उम्मत जो है ना वो पागल नहीं है, उनके भी दिमाग है। उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह एक बार में समझ जाएगी कि अप्पू खान ने अपना अकीदा 8-10 बार बता दिया, लेकिन इस जाहिल मुकल्लिद ने अपना अकीदा वो छुपाता रहा। वो खबर पड़ गया ना अल्लाह अर्श पे है। मेरे भाई आप सुनो, तुम तो अपना अकीदा बताओ कि नहीं, लेकिन हम अपने अकीदे के ऊपर अपनी दलील भी पेश कर दे रहे हैं, ठीक है? अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाता है सूरह नंबर 20 आयत नंबर 5 में। हाँ बोलो। अब बोलो अकीदा अपना। तुम बोलो ना। देखा, दलील देने चले और फौरन तुम एकदम चुप हो गए। मतलब अभी तक तुम्हारा भाई वो जिन जागा हुआ था, बोलते जा रहे थे।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम ये बोल दो आसमान या अर्श अलग अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है दोनों भाई। अलग अलग तुम साबित कर दो, इंशाल्लाह हम बोल देंगे। क्या अलग तुम नहीं अलग? मानते, तुम नहीं मानते आसमान और अर्श अलग है, बोलो नहीं मानते तुम? नहीं मानते भाई, नहीं मानते। अल्लाह का अर्श और आसमान अलग अलग है, तुम नहीं मानते ना? नहीं मानते भाई। और अल्लाह के अर्श और आसमान के बीच में बहुत बड़ी खला, ये तुम नहीं मानते। नहीं, इसको मानते हैं। तो फिर अलग अलग हुई कि नहीं हुई? तो अलग अलग से मुराद तुम क्या ले रहे हो? अलग अलग से मुराद यही है ना भाई, दोनों अभी तुम एक चीज यहाँ रखोगे एक चीज वहाँ रखोगे तो दोनों चीज अलग अलग हुई ना भाई। इसीलिए तो कह रहे हैं मेरे भाई, थोड़ा इल्म हासिल कर लो, ठीक है? वो तुम कर लो। अल्लाह के नबी जब मेराज की रात में जाते हैं, हाँ बताओ तो। सुनो अल्लाह हाँ अल्लाह के नबी जब मेराज की भाई वो रात पे जाते हैं तो पहले आसमान पे जाते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आओ प्यारे बेटे। नहीं, वहाँ से अल्लाह नहीं है, यही तो बता रहा हूँ, पूरी बात तो सुन लो। अल्लाह के बंदे, अल्लाह नहीं है, आसमान में अल्लाह नहीं है मतलब, है ना? तो वही तो बता रहा हूँ ना, पहले आसमान पे नहीं है ना। अल्लाह आसमान में अल्लाह नहीं है ना? अरे पहले आसमान पे नहीं है ना। अच्छा, दूसरा आसमान पे है? नहीं। तीसरे पे है? नहीं। चौथे पे? नहीं। पांचवे पे? नहीं। छठे पे? नहीं। सातवें पे है? अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा भाई, जब तक तुम अपना अकीदा नहीं बताओगे। बता दोगे तो? जब तक तुम अपना अकीदा नहीं बताओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जैसे मैं कुछ बोलूंगा तुम्हारी मैयत निकल जाएगी, इसलिए मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा जब तक तुम अपना अकीदा नहीं बताओगे। बताने से किसकी मैयत निकलेगी? भाई, 1 साल का तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम्हें जब कभी भी अपना अकीदा बताना हो तुम बता देना, ठीक है? एक लाइन में तुम अपना अकीदा बता ही नहीं सकते मेरे भाई, एक लाइन में। तुम तो क्या, तुम्हारा मुफ्त का मुफ्ती मुनीर भी एक लाइन में अपना अकीदा नहीं बता सकता है। बोलो ना दम हो तो कि अल्लाह ताला भाई वो मतलब वो हर जगह मौजूद है, या अल्लाह ताला भाई वो बिला मकाम है, या अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो बताओ ना, अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हो? आसमान का वही तो, आसमान का अरे आसमान पे अर्श पे तुम दोनों में खेलते रह जाओगे, तुम झुंझुना बन जाओगे एक दिन। अरे भाई, तुमको जो तुम्हारे आलिमों ने जो झुंझुना थमा दिया है ना, कि अगर कोई बोले अर्श के ऊपर है तो आसमान को उसको अटका लेना, अगर कोई आसमान बोले तो अर्श के ऊपर उसको अटका लेना, तो ये सब दोगलापंथी छोड़ दो। जब मैंने सीधा तुमसे कह दिया है कि अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे ऊंचाई पे है। सबसे ऊंचाई का मतलब क्या है? पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, उसके बाद अल्लाह सुब्हान व तआला का अर्श, और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला सबसे टॉप पे। जब मैंने पहले बोल दिया तो जबरदस्ती क्यों निकाल करना है तुम्हें? तुम अपना अकीदा कब बताओगे? हेलो भाई, तुम अपना अकीदा कब बताओगे? मरने के बाद बताओगे, या मतलब भाई अभी जीते जी बताओगे, या अभी शाम को बताओगे, या रात को बताओगे? कब बताओगे? फिर बात करना बाद में। अरे कब बताओगे अपना अकीदा? पहले तहकीक करना भाई, तेरे पास दलील आवे ना तब बात भाई करना। वही तो बता रहा हूँ ना, तुम अपना अकीदा बता नहीं रहे हो, तहकीक की बातें हमसे कर रहे हो। जाओ बेटा, 4 साल की जमात में जाओ, तब भी तुमको नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, ठीक है? अल्लाह सुब्हान व तआला कहाँ है ये तुमको नहीं पता, कभी नहीं पता चल जाएगा, कभी नहीं पता चल पाएगा। भाई फालतू दो, तभी तो झोला टांग के जमात में जाते हो पिकनिक मनाने। लोगों के घर की फ्री की बिरयानी ठूसने के लिए तुम लोग जमात में चले जाते हो, और लोगों को चूतिया बनाते हो कि नबियों वाला काम है, नबियों वाला काम है। क्या कभी अल्लाह के नबी ने कभी सहाबा को बताया कि आसमान अलग है, अल्लाह का अर्श अलग है? तो तुम ये सवाल लाए कहाँ से? अरे तुमने ये सवाल कहाँ से पैदा किया कि अर्श अलग है, आसमान अलग है? सवाल पूछा तो अर्श अलग है, आसमान अलग है, ये कौन से भाई जाहिल ने तुमको सवाल बताया? ये मेरी बात सुनो, ये सवाल पूछा तुमसे भाई, तुम अपना अकीदा बताओगे कि नहीं? नबी भाई, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, बहुत प्यार से अल्लाह के बंदे, ठीक है भाई? ऐसे बात नहीं होती जैसे तुम बात कर रहे हो। तुमने मेरा अकीदा पूछा था, मैंने अपना अकीदा बता दिया, फिर मैंने तुम्हारा अकीदा पूछा, तुमको भी अपना अकीदा बताना चाहिए था। उसके बाद जो मेरे अकीदे में दिक्कत थी तुम मुझसे पूछते,
तुम्हारे अकीदे में जो दिक्कत थी मैं तुमसे पूछता, फिर मैं अपने अकीदे की दलील देता, फिर तुम अपने अकीदे की दलील देते। इस तरीके से बात होती है, ठीक है, इस तरीके से बात होती है। तुम्हारी तरह नहीं होती है कि खोल के बताओ, खोल के बताओ आसमान अलग है, अर्श अलग है, आसमान से कितनी दूरी है, अर्श से कितनी दूरी है। ये कोई बात करने का तरीका होता है मेरे भाई? यार तुम पहली बार लग रहा है बात कर रहे हो किसी। ऑडियो डाल देना, खबर पड़ जाएगी कौन पहली बार कर रहा है। भाई हमको लग रहा है तुम पहली बार बात कर रहे हो किसी अहले हदीस से, ठीक है। अभी तक तुमने किसी बरेलवी से बात की होगी या किसी अपनी तरह जाहिल से बात की होगी, ठीक है। तुम्हें ना भाई उसूल पता है, ना बात करने के आदाब मालूम है। तुम अपना अकीदा क्यों छुपा रहे हो मेरे अल्लाह के बंदे? मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? देवबंदियों का अल्लाह कहाँ है? अच्छा, वो क्या मानते हैं अपने अल्लाह के बारे में? अपने अल्लाह को कहाँ मानते हैं? इधर सुनो, मैं एक लाइन में अपना अकीदा बता दूंगा तो तुम ये बता दोगे अर्श या आसमान ये दोनों में से कोई एक जगह या दोनों जगह बता दो। हाँ ठीक है, बता दूंगा, पक्का वादा है मेरा। अल्लाह की कसम खाओ, उसके बाद तुम यही बताओगे। भाई कसम अल्लाह सुब्हानो तआला की खा रहा हूँ कि अगर तुमने अपना अकीदा बता दिया तो तुम मेरे अकीदे पे जितने सवाल करोगे मैं सबका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। उसके बाद एक भी लाइन नहीं बोलोगे तुम, खाली अपना अरे जो तुम पूछोगे मेरे अकीदे पे मैं अपने अकीदे पे बात करूंगा, तुम्हारे अकीदे पे मैं बाद में आऊंगा। अपना अकीदा बताओ। हाँ मेरा अकीदा ये है। हेलो, हाँ बोलते जाओ। मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह बिला मकान है। चलो ठीक है, ठीक है। अब तुम ये बताओ। हेलो, हाँ तो अब तुम ये बताओ कि अल्लाह आसमान में तुम्हारे अकीदे के मुताबिक की अर्श पे है? अल्लाह सुब्हानो तआला जो अरबी में जो आता है समा, तो समा का माना होता है ऊंचाई, ऊंचाई बुलंदी। तो अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ऊंचाई पे, सबसे बुलंदी पे। लेकिन तो अब तुम इसको उर्दू के माने में ले रहे हो कि आसमान, यानी कि आसमान अलग है, अर्श अलग है। तो इसकी वजह से तुमको दिक्कत हो रही है। अरबी में जो समा है, समा का माना होता है ऊंचाई बुलंदी आसमान। अब बात समझ रहे हो मेरी? आसमान के बीच में कितना फासला है, तुम दोनों चीज को मिला मेरे भाई यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, अर्श और आसमान के बीच भाई वो कितना फासला है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह के नबी जब मेराज की रात पे गए तो पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम मिले। आदम अलैहिस्सलाम ने भाई वो सलाम किया और कहा कि आओ प्यारे बेटे। तो इससे हमें मालूम चला कि जो आदम अलैहिस्सलाम है खाली वो भाई वो हम सबके बाप हैं, और बाकी जो भाई वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह के नबी के भाई हैं। उसके बाद दूसरे आसमान पे गए, उसके बाद तीसरे आसमान पे गए, उसके बाद चौथे आसमान पे गए, उसके बाद पांचवे पे गए, और उसके बाद भाई छठे आसमान पे गए। तो भाई ये उसके ऊपर नहीं गए, छठे आसमान के ऊपर अल्लाह के नबी नहीं गए। क्यों? क्योंकि छठे आसमान तक जो फरिश्ते जाते हैं वो सातवें आसमान तक नहीं जाते हैं, और जो सातवें आसमान के जो फरिश्ते होते हैं वो छठे आसमान तक नहीं आते। ये बीच में एक बैरियर है। अर्श पे भी तो अल्लाह के नबी गए थे ना मेरे भाई। ये तो मेरे भाई ये बरेलियों का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हानो तआला के जो आखिरी नबी हैं वो मेराज की रात पे अल्लाह सुब्हानो तआला के अर्श पर गए। ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि भाई ये मुस्नद अहमद की हदीस है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे छठे आसमान पे रोक लिया गया, मुझे छठे आसमान पे रोक लिया गया, और सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला का अर्श है, और अर्श के ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी शान के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह वो कायम है, जलवा फरोश है, मुस्तवी है, ठीक है। अब ये मुस्तवी का माना क्या है कि वो खड़ा है, बैठा है, लेटा है, भाई हमें नहीं पता। हम अकीदे में कीलकाल भाई नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया कि रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ तो हमने मान लिया, जितना कुरान में आ गया उतना हमने मान लिया। हाँ, जिस तरीके से तुमने बताया, कुरान में तो ये भी आया है कि अल्लाह आसमानों में है, और ये भी आया है कि अल्लाह अर्श पे है। आसमानों में कहाँ लिखा है भाई? कौन सी आयत में लिखा है? आयत ये हदीस में आया है ये। कौन सी हदीस में आया है? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा, ये तुमको ये टेंशन मत लो। अरे यार टेंशन हम क्यों लेंगे, देते तुम लोग हो, और टेंशन भी भाई आप ही लोगों को होगी। देखो तुमको अपने अकीदे के ऊपर हम स्टार्टिंग से दलील बताते रहे, ठीक है।
पहले पारे की जो ये 117 या 100 कुछ ऐसी आयत है, उसमें वो उसका तर्जुमा करो तो तुम जरा, वो अल्लाह को जहाँ मशरिक और मगरिब अल्लाह ही के लिए है, और जहाँ तुम सूरे बकरा की आयत नंबर 115 कि तुम जिधर भी रुक करोगे वहाँ पे हेलो भाई अस्सलाम। हाँ वो बताओ। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, वो नदीम भाई हम ये कह रहे हैं जो आपने मतलब जो आयत बताई है सूर्य बकरा की आयत नंबर 115 कि जहाँ भी देखोगे अल्लाह का चेहरा पाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो अरबी में जो अल्फाज आया है वो वजुल्ला, ठीक है, वजुल्ला का माना है अल्लाह का सामना। आप समझ रहे हो? अल्लाह का सामना, अल्लाह का सामना। तो इस चीज को तो हम मानते ही है कि हम कहीं भी देखेंगे, पूरब देखेंगे, पश्चिम देखेंगे, अल्लाह का सामना है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह से हम बच के जा नहीं सकते। तो इस आयत का मतलब ये है, होगा का मतलब ये है कि अल्लाह सामने है। नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। भाई ये कौन सी आपने तफसीर में पढ़ा कि अल्लाह मतलब अपने बंदे के सामने है? अल्लाह को आप देख सकते हैं? मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। अल्लाह को आपने देखा है भाई? मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। नहीं, अल्लाह आपके सामने है तो अल्लाह को आप देख रहे होंगे ना इस समय। पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं देख सकता। मेरी आंखों में अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं रखी, इतनी कुव्वत नहीं रखी कि मैं तो फिर आपने ये बात कैसे बोल दी कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मेरे सामने है? कि तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे देख सको, इसलिए तो वही तो बता रहे हैं ना, तो वही तो बता रहे हैं मूसा, तो वही तो बता रहा हूँ यार, कुरान सुना रहा हूँ। चुप नहीं, तो आपने जो कहा कि अल्लाह सामने है, अल्लाह सामने कहाँ है आपके? कुरान पढ़ा जाए तो चुप हो जाओ, कुरान पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए भाई, पढ़िए। तर्जुमा देखो 115 नंबर की, तो पहला पारा 115 नंबर की आयत है, उसका तर्जुमा है, और अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, तो जिस तरफ तुम मुंह करो उसी तरफ अल्लाह का सामना है, बेशक अल्लाह वुसअत वाला जानने वाला है। तो इसका मतलब क्या निकालते हो तुम? भाई ये आयत आपने खुद पढ़ी है और खुद नहीं समझ में आ रही है कि बेशक अल्लाह जानने वाला है। तो यहाँ पे अल्लाह क्या है? अल्लाह का सामना है। आधी आयत सामना है भाई, एक आयत में से आधी आयत को पढ़ के समझ लोगे, पूरी आयत पढ़ोगे तभी तो मानने समझ में आएगा। पूरी आयत है भाई, ये सुन ले मेरे भाई, पूरी आयत भाई तुमको चलो तुम इत्मीनान से समझा रहे हैं, ठीक है? तुम सुना दो। अल्लाह सुब्हानो, हाँ सुनो मेरे भाई, पूरी आयत में जो लास्ट में है कि अल्लाह सुब्हानो तआला जानने वाला है, तो जानना नीचे अरे सुन जानने वाला है, बोला तो मैंने जानने वाला है। तो वही मैं बता रहा हूँ, इसका माने बता रहा हूँ मेरे भाई, सुन तो लो अल्लाह के बंदे। तुम्हारे आलिमों ने आज तक तुमको नहीं बताया होगा, इसलिए बताने जा रहे हैं। जानने तो यार अल्लाह जानने वाला है, तो जो ये जानना होता है भाई, तो ये जानना होता है, ये क्या होता है भाई? ये मतलब भाई वो सिफात भी तो जो कहा वो तो देखो। अरे ये जानना मेरे भाई, ये सिफात होती है, ये अल्लाह की जात होती है। अल्लाह सुब्हानो तआला जानने वाला है, तो इसका मतलब ये अल्लाह सुब्हानो तआला की भाई वो क्वालिटी है, सिफात है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला अपने इल्म के जरिए हम लोग के साथ है। अल्लाह ताला खुद अपनी जात के साथ हम लोग के सामने नहीं है। अगर इस आयत का तर्जुमा मान लिया जाए कि तुम चाहे जहाँ भी देखो, मगरिब देखो, मशरिक देखो, अल्लाह का सामना पाओगे। अगर कोई इसको अपनी असर से समझेगा कि हाँ अल्लाह मेरे भी सामने है, तुम्हारे भी सामने है, फला के भी सामने है, जमात के भी सामने है, तो कितने सारे अल्लाह हो जाएंगे, कितने सारे अल्लाह हो जाएंगे। एक अल्लाह अप्पू के सामने है, एक अल्लाह जो भाई अप्पू से बात कर रहे हैं नदीम, एक अल्लाह उसके सामने। तो भाई वो दो अल्लाह तो ऐसे हो गए, बाकी दुनिया में कितने लोग हैं, तो सबके सामने अल्लाह हो गए, तो पूरी दुनिया में अल्लाह ही अल्लाह हो गए। मतलब भाई वो जितने बंदे हो गए उतने अल्लाह हो गए। तो यह कीड़ा भैया अल्लाह बचाए, ऐसे कीड़े से ऐसे कीड़ा हम नहीं करते, हम इस आयत को ऐसे समझते हैं। अरे सुन लो नदीम भाई, सुन लो मेरे भाई, सुन लो भाई, हम इस आयत को ऐसे समझते हैं कि जहाँ भी हम देखेंगे अल्लाह का सामना है। अल्लाह बेशक हमें सामने से देख रहा है, लेकिन अल्लाह हमारे साथ मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला को देखने के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला को देखने के लिए भाई हमारे सामने नहीं आना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला बिल्कुल आसमान की ऊंचाई में बैठे बैठे सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह सुब्हानो तआला सब कुछ जानने वाला है। ऐसे क्यों बयान किया कि मैं सामने, मेरा सामना है? तो यही तो मेरे भाई बात है ना, जब आयत को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ोगे
तब तुम्हारे समझ में आएगा ना मेरे भाई। अब नहीं बीच में क्या आए तो देखना ही मतलब होता तो वो भी बोल सकते थे ना भाई, वो भी फरमा सकते थे। ये क्यों फरमाए कि सामना अल्लाह से होगा, तुम जहाँ भी मुँह करो। सामने अल्लाह से होगा, ये कोई तर्जुमा नहीं है माना देखने का नहीं है भाई, ये तो तुम साबित भाई। नहीं कर ये सकते। तर्जुमा नहीं है कि जहाँ भी तुम देखोगे अल्लाह का सामना हो जाएगा, ऐसा नहीं तो है क्या तर्जुमा, हाँ क्या तर्जुमा भाई। क्या है इसका वजुल्लाह बताओ। का माना होता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला का सामना, तो हम कहीं भी रहेंगे तो सामने ही तो बोल रहा हूँ मैं अल्लाह यार। सुब्हानो ताला के सामने ही रहेंगे। अल्लाह सुब्हानो ताला से वो छुप के हम नहीं जा सकते। अगर हम सोच रहे हैं कि लो चोरी मैंने छुपे कमरे में जो भाई तर्जुमा हम बताया चोरी वो कर लें, गलत है। किसी का रेप कर लें या जिना कर लें, तो हेलो। अल्लाह का सामना है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो इसका माना मैंने ये जो तर्जुमा इसका माना ये नहीं है कि मतलब वो दुनिया में जितने इंसान हैं अल्लाह सुब्हानो ताला एक एक इंसान के सामने खड़ा हुआ है, एक हदीस ऐसा पढ़ता नहीं हूँ, है। एक हदीस पढ़ता हूँ। अरे तुम सब कुछ ठीक है। पढ़ लोगे लेकिन बताओगे हाँ, नहीं। मैं एक हदीस पढ़ता हूँ ना। हाँ सुनो हदीस ध्यान से, कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाओ तो अपनी हथेलियों को सामने रखो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे सामने होता है। तो ये हदीस का तुम क्या, और एक और हदीस सुनो, ये हदीस का भाई तुम क्या मतलब निकालोगे। भाई ये पीछे कौन बोल रहा है, उसी से बात करा दो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। बंदा तो यहाँ जमीन में नमाज पढ़ता है कि अर्श पे नमाज पढ़ता है। हेलो। और तुम सजदा एक और हदीस ये है अरे कि यार अल्लाह तुम के नबी दोनों एक रसूलुल्लाह साथ बोल रहे हो, सल्लल्लाहु अलैहि किसी की वसल्लम ने आवाज साफ नहीं आ रही, या जो तुम्हारे पीछे बोल रहा है या तो उससे बात करवा दो, या तो उससे बोल दो चुप हो जाओ, तुम ही बोलो। मैं हदीस सुना रहा हूँ, चुप हो जाओ अभी। हाँ तो दोनों लोग क्यों बोल रहे हो एक साथ यार, समझ में नहीं आता है। हाँ, और एक और हदीस ये है कि अरे पहली जब हदीस तो सुनाओ मेरे भाई। सुनाया तो अल्लाह के क्या? नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथों को उठाया करो तो अपनी हथेलियों को किबला रुख रखा करो, ताकि अल्लाह उसके सामने होता है। अल्लाह उसके सामने होता है, मतलब अल्लाह तुम्हारी हथेलियों के सामने होता है। अच्छा मतलब अल्लाह नौजुबिल्ला, मतलब तुम्हारी हथेली में इतनी पावर आ गई है कि तुम हदीस का अल्लाह इनकार सुब्हानो कर रहे ताला हो। को अपने सामने कर नहीं, लोगे हथेली हदीस का दिखा इनकार के। कर रहे हो तुम, हदीस का इनकार कर रहे हो, ये नहीं, बताओ। हदीस का इनकार नहीं कर रहे, हदीस सही है, लेकिन यहाँ पे जो माना है वो इल्म का माना है। इल्म अल्लाह सुब्हानो ताला का इल्म हमारे सामने है, खुद अल्लाह ताला हमारे सामने नहीं है। तर्जुमा पढ़ो, चलो तुम तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह सुब्हानो ताला इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानो ताला खुद अपनी जात के साथ इस दुनिया के अंदर आ ही नहीं सकता है। कुरान में आ गया या हदीस में आ गया, ये बता दो ये बात। अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने जो ये दुनिया है ना, ये चींटी है, चींटी। इसमें अल्लाह ताला खुद कैसे आ जाएगा। हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर आप लोग कहते हो, अल्लाह अकबर हम लोग कहते हैं तो क्या है, हाँ, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, तो क्या वो इस छोटी सी दुनिया में आ सकता है। नहीं तुम ये बताओ, क्या तुम बोलते हो अल्लाह इस छोटी सी दुनिया में आ सकता है। जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो, इधर उधर भागो तुम मत। बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, अल्लाह अर्श पे आ जाएगा। अरे अर्श पे कोई फिर भी चीज अल्लाह सुब्हानो ताला के अर्श के बारे में तुमको मालूम है। हाँ तो इतना भी बड़ा अर्श, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अर्श से भी बड़ा। आयतल कुर्सी की मेरे भाई तफसीर अगर तुमने पढ़ ली होती तो आज तुम मेरे भाई ऐसे उल्टे सीधे सवाल ना करते। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह की कुर्सी है, अल्लाह की कुर्सी का एग्जाम्पल सुन लो। ये बड़ा सा रेगिस्तान है और बड़े से रेगिस्तान में कोई उंगली का अगर वो लोहे का अगर वो छल्ला अगर फेंक दे रेगिस्तान में, तो ये पूरा जो अल्लाह सुब्हानो ताला की जो कुर्सी है, अर्श है, ये जो दुनिया है वो उस अंगूठी के भाई वो छल्ले के बराबर है। इतनी छोटी दुनिया है और अल्लाह का अर्श उतना बड़ा है। और तुम लोग कह रहे हो कि अल्लाह ताला मेरे सामने है, मेरी मतलब वो हथेलियों के सामने, वहाँ पे इल्म मुराद है। आप मेरी बात सुनोगे भाई। अब भाई तुम खाली मंतिक मार रहे हो, तुम्हारे पास दलील एक भी नहीं है मेरे भाई। कोई ऐसी दलील दो जिसमें साफ साफ हो कि अल्लाह ताला बिला मकाम हो। फंस गए, तुम भी ऐसी दलील दे दो जिससे साफ साफ साबित हो कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है। तो मेरे भाई दे तो रहे मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह ताहा की सूरा नंबर 20 आयत नंबर 5 और सूरह अल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 54 और सूरह अल फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 उसमें फरमाते हैं कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। हाँ तो इसका मतलब क्या निकाल रहे, अल्लाह सिर्फ अर्श पे है। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने आप को अर्श पर मुस्तवी कर दिया। मुस्तवी का मतलब
मुस्तवी का मतलब उलमाओं ने अलग अलग किया है कि कायम है, मतलब वो जलवा फरोश है, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह सुब्हानो तआला की भाई वो जैसी उसकी शान है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला अर्श के ऊपर छाया हुआ है, बिल्कुल कायम है, मुस्तवी है, जलवा फरोश है। कायम है वहाँ पे, इसका मतलब कायम। अरे मेरे भाई मतलब तुमने बस यही तो बता रहा हूँ ना किताब नहीं पढ़ी कि है, अल्लाह सुब्हानो तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ हुआ तो हुआ। मुस्तवी का अब वो मतलब लेटा है, खड़ा है, बैठा है, कैसा है हमको नहीं मालूम, कैफियत जो है भाई ये मजहूल है, कैफियत मजहूल है, हमें उसमें नहीं पढ़ना है, बस इतना मानना है कुरान की आयत है तो मानना है कि भाई वो रहमान ने अपने आप को अर्श पर मुस्तवी कर दिया। तो ये भी मानो जो मैं हदीस बता रहा हूँ, ये भी मानो भाई। तो हदीस तो मान ही रहे हैं भाई, जो आप हदीस बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका माना ये है कि अल्लाह सुब्हानो तआला का इल्म वहाँ पे मौजूद है, इल्म अल्लाह खुद नहीं मौजूद है। अल्लाह के नबी इल्म लफ्ज यूज कर सकते थे अगर तो अल्लाह के नबी भाई वो जात भी लफ्ज भाई इस्तेमाल कर सकते थे। क्या अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ साहबा अल्लाह तुम्हारे मतलब वो सामने रहता है अपनी जात के साथ, ऐसा कहा कहीं? तो ऐसा भी तो कहा कह दिया अल्लाह सिर्फ अर्श पे ही रहता है। तो वही तो मेरे बात भाई, ये एक ही बताओ, मैंने तुमसे ये कब कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ अर्श पर ही रहता है, कि मैंने कब बोला? आसमान में भी है क्या? आसमान में भी है, ये बताओ तुम। अरे अजीब पागल मेंटल आदमी हो मेरे तो भाई। अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे भाई तो वो मैं सबसे पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ सुनो मेरे भाई, हदीस से बता रहा हूँ मेरे भाई, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भाई वो हदीस है कि अल्लाह सुब्हानो तआला हर रात आसमानी दुनिया पर आता है और एक आवाज लगाई जाती है, निदा लगाई जाती है कि कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, कोई है मुझसे भाई वो कुछ भी मांगने वाला, रोजी हो, मगफरत हो, कोई है मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानो तआला आ रहा है ना, अब वो कैसे आ रहा है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आ रहा है ना, आ रहा है, बात सही है, मैं भी मानता हूँ हदीस को, सही हदीस है, बुखारी की हदीस। तो जब सही है तो ये सवालिया आपका भाई ये बेबुनियाद है कि अल्लाह ताला खाली अर्श पर ही है, अर्श पर ही होता तो वो आसमानी दुनिया पे कैसे आता? तो तुमने पहले बात क्यों नहीं किया जब मैं पूछ रहा था कि अल्लाह अर्श पे के आसमान पे, तो तुमको बोलना चाहिए ना अल्लाह अर्श पे भी। मैंने तो ना अर्श का नाम लिया ना आसमान का, मैंने कह दिया अल्लाह सुब्हानो तआला सबसे ऊंचाई पे, सबसे बुलंदी पे, सबसे टॉप पे, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका पावर ये हर जगह है। तुमने एक भी बार बोला नहीं है ऑडियो में कि अर्श पे है भाई, जो इससे पहली वाली ऑडियो भी जिसमें बात हुई है, जिसमें अकीदे पे बात हुई है, कितनी बार मैंने बोला है अर्श पे है, ऐसा बोला ना तुमने? हाँ अर्श पे भी है, सबसे ऊंचाई पे भी है। ये यार अलग अलग बात क्यों कर? अर्श पे भी अरे अर्श मेरे, अच्छा ये बताओ अर्श के ऊपर क्या है? अर्श के ऊपर अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर क्या है बताओ? अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं। तो जब अल्लाह के ऊपर कुछ नहीं तो सबसे ऊंचाई पे हो गया ना। खुद ही कंफ्यूज हो तुम यार, खुद ही अपने मुंह से बोलते हो फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ तो ऐसा बोलो ना, तुम बोले अर्श पे भी है और सबसे ऊंचाई पे भी है। अरे तो मेरे भाई अर्श मेरे भाई सबसे ऊंचाई पे है और उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानो तआला। ठीक, तो रुको मैं तो सबसे ऊंचाई पे तो हो गया अल्लाह। एक हदीस सुनाता हूँ, एक हदीस सुनाता। अरे सुना लो मेरे भाई, अपना शौक पूरा करना। एक हदीस सुनाता हूँ। एक हदीस है कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हिजरत के वक्त जब निकले तो कुफ्फार मुशरिकीन मक्का उनके पीछे पड़े, और जब वो एक गुफा में, एक गार में जाकर रुके तो एक कुफ्फारे, एक मुशरिकीन मक्का वहाँ पे आया तहकीक के लिए, ढूंढने के लिए वहाँ पे आया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने उसके पैर को देखा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर महसूस किया, कि डर महसूस हुआ उनको। तो अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे अबू बकर सिर्फ तू और मैं नहीं है, हम दोनों के बीच में तीसरा अल्लाह भी यहाँ पे है। हाँ तो फिर इससे साफ जाहिर हो रहा है यार, तुम बोल रहे हो नहीं। क्या साफ जाहिर हो रहा है बताइए जरा, क्या साफ जाहिर हो रहा है? आप जो समझे हैं इस हदीस से बताइए। नहीं हदीस भाई फतवा बाद में ठोक लेना, तुमने जो हदीस पढ़ी उससे तुमने क्या समझा है मेरे को तो समझाओ मेरे भाई। मैंने ये समझा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तीसरा यहाँ पे अल्लाह है। अच्छा, मतलब वो तीसरा अल्लाह है, तो ये तो कुरान की आयत भी है कि अगर तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है, तो उसका माना आपने क्या समझा?
इसका माना समझा कि अल्लाह मौजूद है वहाँ पे। मतलब अल्लाह ताला खुद इस दुनिया में इस समय इंसानों के बीच में मौजूद है, आपका ये अकीदा है? आपका ये अकीदा है? अल्लाह बिना मकाम है, ये अकीदा हमारा। नहीं, मतलब जो ये कोई मकान नहीं है। हाँ, अल्लाह का कोई मकाम नहीं है, लेकिन अगर दो आदमी है उनके साथ अल्लाह है तो अल्लाह भी तो मकाम में आ जाएगा ना। नहीं, वो तो हदीस में खुद आ रहा है। अरे आपने बोला कि भाई हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला बिना मतलब भाई वो मकाम के है, यानी कि ना वो उत्तर में, ना दक्षिण में, ना पूरब में, ना पश्चिम में, वो कहीं नहीं है। अल्लाह ताला बिना मकाम है। तो अब अगर दो आदमी है तो तीसरा अल्लाह है, चार आदमी है तो पांचवा अल्लाह है, तो आखिर वो भी तो आ गया भाई, वो मकाम के अंदर ही तो आ गया। वो तो यानी कि आपका अकीदा बातिल हो गया, एक अकीदा तो आपके ही उसूल से बातिल हो गया। ठीक है, चलिए खैर, वो तुम्हारे उसूल से बातिल हुआ है भाई। भाई ऑडियो सुनने वाले लोग जान जाएंगे कि तुमने खुद ही अपनी ही दलील से अपने अकीदे को बातिल कर दिया। मेरे भाई, जब भी मेरे भाई कहीं पे भी ऐसा आता है कि अगर तुम एक हो तो दूसरा अल्लाह है, अगर तुम दो हो तो तीसरे अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है, तो उसका मानना ये होता है कि अल्लाह का इल्म तुम्हारे साथ है। तुम दोनों आपस में भाई वो चोरी की प्लानिंग ना करो, अल्लाह सुब्हानो तआला देख रहा है। तुम दोनों अकेले में भाई वो शराब ना पियो, अल्लाह सुब्हानो तआला तुमको देख रहा है। तुम दोनों भाई वो जिना ना करो, अल्लाह सुब्हानो तआला तुमको देख रहा है। तो उसका मानना ये है, उसका मानना ये नहीं है कि अगर हम दो हैं तो तीसरा अल्लाह है। अल्लाह के नाउजुबिल्लाह हम लोग का मतलब वो साथी या मतलब वो दोस्त यार है कि हम जहाँ भी जाएंगे अल्लाह को लेके जाएंगे अपने साथ। मुनकिरीन हदीस, जाहिल इंसान इधर सुनो। भाई मुनकरे हदीस तो तुम हो, तुम्हारे हदीस भी समझ में नहीं आती है। तुम कहाँ की दलील को कहाँ फिट कर लेते हो? होना चाहिए था, ये कयास कर लिया तुमने। अरे कयास तो तुमने क्या ना, खुद ही कह रहे हो कि अल्लाह ताला भाई वो बिला मकान है। तहकीक करो पूरी, अभी तुम्हारी तहकीक नहीं पूरी हुई है। बेटा लोग सुन लो, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ हदीस, बिल्कुल सही शफात हदीस। अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो। हाँ सुनो। अल्लाह कहाँ है? तो एक बांदी ने अर्ज किया कि अल्लाह सुब्हानो ताला आसमान पर है। आपने फरमाया कि मैं कौन हूँ? तो उस बांदी ने कहा कि अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया कि इसको आजाद कर दो, ये मोमिन औरत है। सही? हाँ सुन लो मेरे भाई, हवाला भी ले लो, सही मुस्लिम किताबुल तौहीद हदीस नंबर 537। अब बताओ, अल्लाह के नबी खुद पूछ रहे हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो उस बांदी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला बिला मकाम है, उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानो ताला आसमान पे है। और अरबी में समा का माना क्या होता है कि सबसे ऊंचाई पे, बुलंदी पे, टॉप पे। तो भाई यही तो अकीदा पहले हदीसों का है। तुम्हारा अकीदा तो मेरे भाई साबित ही नहीं है। कौन से साहबा ने कहा कि अल्लाह ताला भाई वो बिला मकाम है? कब अल्लाह के नबी ने तालीम दी कि अल्लाह ताला बिला मकाम है? कहाँ से लिया है अकीदा या मनमाना तुम? अरे मेरी बात सुनोगे अब तुम? भाई कहाँ से लाई जा अकीदा तुम? मतलब क्या ये मुफ्ती मुनीर ने अकीदा बना के दिया? बता रहा हूँ भाई, मुफ्ती मुनीर ने 4 महीने की जमात में तुमको अकीदा सिखाया याला? हेलो, कहाँ से लाए? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, कहाँ से लाए अकीदा याला? बोल रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम चुप करो। हाँ मैं चुप हूँ, बताओ जल्दी। हाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान शरीफ में फरमाया कि अल्लाह जब तुमसे कोई पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो बोलना करीब है। ऐसा तो नहीं फरमाया कि अर्श पे है। हाँ, यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के नबी को भाई वो कुरान भाई वो नहीं मालूम थी, और अल्लाह के नबी ने बांदी से पूछा अल्लाह कहाँ है, तो बांदी ने मतलब भाई वो गलत जवाब दे दिया कि अल्लाह आसमान पर है, और अल्लाह के नबी ने उसको आजाद भी कर दिया है ना। यानी कि जो कुरान है वो 1438 साल के बाद भाई तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन नाउजुबिल्लाह अल्लाह के नबी के समझ में नहीं आया। अल्लाह आसमान पे भी है, हम ये बात को भी मानते हैं। अभी तुम कह रहे हो कि भाई वो बिला भाई वो मकाम है, अब आसमान मकाम नहीं है। ये तुम मानते हो बिला मकाम है? अरे यार अजीब मेंटल आदमी हो, ऑडियो लोग सुनेंगे हंसेंगे। अकीदा तुम्हारा है, तुमने बोला कि मेरा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला बिला मकाम है। अब तुम कह रहे हो अल्लाह को अर्श पे भी मानते हैं, फर्श पे भी मानते हैं, आसमान पे भी मानते हैं, जमीन पे भी मानते हैं। हर जगह है बेशक,
लो अल्लाह हर जगह आ गया, तो अल्लाह हर जगह है। तो भाई ये बताओ क्या क्या भाई वो नाउजुबिल्ला अल्लाह तुम्हारे भाई वो बाथरूम में भी है, टॉयलेट में भी है, तुम्हारी जेब में भी है, गाड़ी में भी है, दुकान में भी है? इसका जवाब है मेरे पास। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ मेरे पास बताओ बताओ। कोई हाफिज होता है, उसके सीने के अंदर कुरान होता है, हाँ ठीक है, तो क्या वो बैतुल खला जाता है तो सीने से कुरान निकाल के जाता है? तो भाई उसके पास उसका इल्म होता है ना कुरान का, एक्चुअल कुरान की किताब कोई ना लेके आता है। भाई हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह है, अल्लाह सुब्हानो ताला का इल्म हर जगह है, चाहे वो हमारी जेब हो, चाहे हमारी कार हो, चाहे लैट्रीन हो, बाथरूम है, अल्लाह ताला को सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ हो रही है। मैं बोला तुम्हारा एकदम जाहिलो जैसा अकीदा, तुम्हारा अकीदा जाहिलो जैसा, जो तुम कह रहे हो कि ये हाफिज कुरान वो टॉयलेट जाता है तो कुरान उसके साथ रहता है, तो कुरान का इल्म उसके सीने में होता है। एक्चुअल जो भाई वो कुरान जो मतलब किताब होती है भाई वो नहीं साथ में लेके जाता है टॉयलेट बाथरूम में, ठीक है। ये जो सब तुम जवाब देते हो ना, ये जो तुम्हारे मुफ्ती लोग तुमको सिखा के भेजते हैं और वो लोग सोचते हैं कि अरे हम जीत गए, ये सब जो ये भाई ये जो सवाल जवाब है ना, ये सब बहुत लोग करते हैं। ये हारने जीतने के लिए बात नहीं होती है भाई। नहीं, तुम्हारे मुफ्ती लोगों को खाली जीतना है, खाली मंतिक मार के कुरान हदीस को फेल करके उनको जीतना है, उनको अपने मतलब को पास करना है, कुरान हदीस को फेल करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह सामने, तुम मना करते हो अल्लाह नहीं अर्श पे आसमान पे। अरे मेरे भैया, अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह फरमाता मैं करीब हूँ, तुम बोलते अर्श। चलो ठीक है, दूसरी हदीस बता रहे हैं। हाँ, अल्लाह के नबी रसूल अल्लाह ने भाई वो यौम अरफा के खुतबे में फरमाया, तुम लोगों से मेरे बारे में पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या कहोगे, ठीक है। उनमें से सहाबा ने कहा कि हम गवाही देंगे कि बिलाशुबा आपने दीन पहुंचा दिया, अमानत अदा कर दी, ठीक, आपने उम्मत की भाई वो हर तरह से मतलब भाई वो मतलब पूरा का पूरा दिन पहुंचा दिया। तो इस पर अल्लाह के नबी ने अपने जो शहादत की उंगली थी उससे आसमान की तरफ इशारा किया और 3 बार कहा कि ऐ अल्लाह सुब्हाना व तआला तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। अब बताओ, अगर अल्लाह ताला भाई कहीं नहीं है, बिला मकाम है, हर जगह है, तो अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली क्यों उठाई? सही मुस्लिम किताबुल हज हदीस नंबर 1217, एक बार पढ़ लेना। अल्लाह सुब्हानो ताला एक बार नहीं 3 बार कह रहे हैं, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, आसमान की तरफ उंगली करके सहाबा के बीच में। नमाज बात करते, देखो अजान हो रही है, अल्लाह के नबी बस मेरे भाई ठीक है, जाओ बात करना, जाओ बेटा, अब पहले सीख लो मुफ्ती मुनीर से, उसके बाद बात करना, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, अभी अजान हो रही है। अभी तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, रखो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।